Good morning, students. Today, I, Gunjan Garg, going to explain a new chapter, that is a special request. Children, it is Unit 3, Section C, Class 8 chapter, a special request. When do you have family celebrations? Tell your partner about the celebration you enjoyed the most. The very beginning of this chapter, the writer is asking you a question, when do you have family celebrations? And you can tell about that celebration to your partner. Now let's start the explanation line by line. It was the grandest family reunion of the town. 5 generations of the family gathered for Jacob and Sheila Johnson's Golden Jubilee celebrations. So, in the beginning of this chapter, the writer is telling us that it was the grandest family reunion of the town. It means it is the grandest family of the town. And in that family, 5 generations gathered, यानी 5 generations इकट्ठी हुई हैं किसके लिए? For Jacob and Sheila Johnson's Golden Jubilee celebrations. There was a Golden Jubilee in that family. It was a large family. Sons, daughters, in-laws, nieces, nephews, grand and great-grandchildren, uncle, aunties and other remotely related were invited. And for these functions, they all were invited, and they were invited their near and dear relatives also. The grand family numbered 76 individuals. In that family, there were 76 members. The youngest twins, all of 12 years, and the oldest 93 years. It means the family have the youngest twins, यानी जो सबसे छोटे थे वो twins थे, and they were 12 years old, and the oldest 93 years, और जो सबसे बड़ा member उस family का था वो 93 years का था. The celebration of course had to match expectations. तो जो celebration से सबको बहुत ज्यादा expectations थी. A banquet was good, but why not make it a gala affair by having every sort of entertainment for the varying ages present? It means they have so much expectations for that celebration because the banquet hall was good. So they were saying that, but why not make it gala affair by having every sort of entertainment for the varying ages present? It means उसमें जो हर एक एज के जो लोग थे, पीपल थे उनकी फैमिली के, उनके एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ उन्होंने कर रखा था कि they have so much expectations for this celebration because they have every sort of entertainment for that family members. So yes, there was something for everyone. हर किसी के लिए कुछ ना कुछ उस पार्टी में, उस सेलिब्रेशन में था. A description of which would not be as interesting as being there in person. और वहाँ पे ये बताया गया है कि उस सेलिब्रेशन में यानी इतना एंजॉय लोग उस चीज को ना करते जो उनके लिए एंटरटेनमेंट किया गया था, बल्कि वो जो लोग थे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, जो उस पार्टी के लोग थे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थे. The highlight of the evening was the guest Ashok Bhatt, a famous singer and lyricist. And the highest guest of this family, highlight of that celebration is Ashok Bhatt. He was a famous singer and lyricist. He also did comedy shows occasionally. He was a comedian also. Ravikant, Jacob's eldest son, has especially invited him because his parents loved his music. So Ravikant, जो उस family का सबसे eldest son था, he had especially invited him because his parents loved his music. Whose music? Ashok Bhatt's music. So what better gift than to have him write a special song for them and perform it as well. तो उसने सोचा कि इससे better gift उसके parent के लिए और क्या होगा, that Ashok Bhatt will sing a song for their parent and perform it as well. The twins Sally and Srini were especially curious about the singer-songwriter. So the twins Sally and Srini, they were especially curious. They were also curious about the singer and songwriter. Being the youngest, they took advantage of this exclusiveness to have a private word with him. Because they were the youngest children of that family, so they took advantage and वो भी क्या करते हैं, उस अशोक भट्ट के साथ वो एक प्राइवेट में बात करते हैं. एक्सक्लूसिवनेस मीन्स होता है नॉट इंक्लूडिंग अदर्स मीन फॉर अ व्यू, यानी उन्होंने किसी को उसमें इंक्लूड नहीं किया, अपने आप उनसे प्राइवेटली बात की. एंड ही वेरी काइंडली ओब्लाइज, और जो अशोक भट्ट थे उन्होंने भी उन्हें बहुत अच्छे से ओब्लाइज किया. शैली वेल मैनर्ड एंड इंटेलिजेंट एंड श्रीनी क्विक विटेड एंड सॉफ्ट स्पोकन. जो शैली है वो बहुत ही वेल मैनर्ड और इंटेलिजेंट है, और श्रीनी जो है वो क्विक विटेड यानी वो भी बहुत इंटेलिजेंट है एंड सॉफ्ट स्पोकन. हिट इट ऑफ मीन्स होता है कि इसे फ्रेंडशिप कर लेना.
विद अशोक इमीडिएटली, वो बहुत ही जल्दी अशोक के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं। ही वॉज फ्लोर्ड बाय देयर चार्मिंग इनोसेंस, और जो अशोक भट्ट होते हैं वो भी, फ्लोर्ड का मीन्स होता है बच्चों ग्रेटली अफेक्टेड विद एडमिरेशन फॉर समवन, मतलब वो भी उनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। श्रीनी इंसिस्टेड ही वॉज 12 एंड शैली वॉज 13, और वे क्या करते हैं, थे तो वो ट्विंस, लेकिन वो क्या करते हैं, अशोक भट्ट को बोलते हैं कि श्रीनी इंसिस्ट करती है कि ही वॉज 12 की, वह 12 ईयर का है और शैली 13 की है। हाउ इज दैट पॉसिबल, यू आर ट्विंस, अशोक आस्क्ड विद एन इनक्रीडियस स्माइल, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो ट्विंस हो, अशोक ने उनसे पूछा। वॉट एन इनक्रीडियस स्माइल, इनक्रीडियस स्माइल मीन्स होता है फीलिंग और शोइंग डिसबिलीफ, उसने उन्हें डिसबिलीफ दिखाया, बिकॉज यू आर ट्विंस, हाउ कैन इट पॉसिबल दैट ही इज 12 एंड यू आर 13। यू सी शैली इज 12 मिनट ओल्डर देन मी, तो वो बोलता है तुम्हें पता है शैली जो है वो मुझसे 12 मिनट बड़ा है। श्रीनी सेड सीरियसली, श्रीनी ने बहुत ही सीरियसली बोला। अशोक लाफ्ड एट द किड्स विट, तो अशोक भट्ट होते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो भी उनके इस विट के कारण बहुत ही हंसते हैं। वुड ही ग्रांट देम ए स्पेशल रिक्वेस्ट, ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे देखना बच्चों ट्विस्ट है एक, वुड ही ग्रांट देम ए स्पेशल रिक्वेस्ट, वो बोलते हैं कि हम आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो बोलता है ऑफ कोर्स ही वुड, इट वॉज अ टचिंग रिक्वेस्ट, और वो बोलते हैं कि ये एक बहुत ही टचिंग रिक्वेस्ट है। अब देखते हैं कि रिक्वेस्ट है क्या, दैट इज द हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। प्लीज मिस्टर भट्ट, वी हैड लव टू सी ग्रेट ग्रैंडफादर लाफ, इट इज द रिक्वेस्ट, वो बोलते हैं कि मिस्टर भट्ट हम चाहते हैं कि आप हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं उनको हंसाएं। यू आर ए कॉमेडियन एज वेल एंड यू नॉट यू आर, वो बोलते हैं कि आप एक कॉमेडियन हो और ये बात हमें पता है। सैली सैड इन ऑल ईयरनेसनेस, जो शैली है वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से, अर्नेस्टनेस से क्वेश्चन उससे कहता है कि हमारे ग्रैंडफादर को आप हंसा दीजिए। श्रीनी एडिड परसुएशन विद अपील रिटन लार्ज इन हिज वाइड आईज, यानी जो श्रीनी है वो अपनी उसकी आईज से ऐसा लगता है कि वो उन्हें इंसिस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि प्लीज आप हमारे लिए ये कर दीजिए। अशोक began song after song was uploaded as he peppered them with puns, one-liners, and riddles. He fired good old jokes and regaled them with brand new ones. तो अशोक भट्ट जो होता है वो सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स गाता है, उन सबको बहुत ही एंटरटेन करता है। वो अपने सॉन्ग्स में कुछ रिडल्स, कुछ अच्छे अच्छे, ही फायर्ड गुड ओल्ड जोक्स, जो ओल्ड जोक्स होते हैं उन्हें कुछ न्यू करके उन्हें भी वो उसमें शामिल करता है। एंड ही रिगेल्डेड देम, और वो सबको एंटरटेन करता है विद ब्रांड न्यू वंस, और नए नए सॉन्ग्स भी सुनाता है। माई फादर हु सर्व्ड इन वर्ल्ड वार सेकेंड वॉज वन आस्क्ड डिड यू एवर किल एनीवन, यहाँ पर बच्चों माई फादर हु सर्व्ड इन, ये बच्चे उन्हें बताते कि जो मेरे फादर हैं वो वर्ल्ड वार सेकेंड में जो उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। वॉज वंस आस्क्ड, उन्होंने उनसे एक बार पूछा डिड यू एवर किल एनीवन, क्या तुमने किसी को मारा। एंड ही रिप्लाइड इन ए सॉफ्ट वॉइस प्रोबेबली आई वॉज द कुक, और फिर उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि शायद ही, बिकॉज आई वॉज द कुक, मैं तो वहां पे एक कुक था। सो रविकांत आई होप द कुक हियर एंड अंडर सर्विलेंस, तो वो बोलता है कि मैं ये होप करता हूँ कि जो कुक्स होते हैं हियर आर अंडर सर्विलेंस, सर्विलेंस मीन्स होता है वेरी क्लोज वॉच, क्लोज सुपरविजन, की उनका मतलब सुपरविजन जो है बहुत ही क्लोज होता है। अशोक सेड, अशोक ने जब बोला जैकब जॉनसन एन एक्स सर्विसमैन हिमसेल्फ रोड विद लाफ्टर एट दैट वन, तो जो जैकब जॉनसन होता है जो उसका एक्स सर्विसमैन भी था अपने आप भी, वो इस बात को सुन के बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ऑल द वाइल अशोक केप्ट एन आई ऑन द ग्रेट ग्रैंडफादर, तो जब उसकी बातें सुन सुन के सब हंस रहे थे, तो जो अशोक होता है उसका तो मेन मोटिव अब ये हो गया था कि उसे उनके बच्चों के ग्रैंडफादर को हंसाना था, बिकॉज इट इज द स्पेशल रिक्वेस्ट इन दिस चैप्टर। तो वो जब सब हंसते हैं उसकी बात से, तो उससे वो क्या करता है, उन्हें देखता रहता है ग्रेट ग्रैंडफादर को। बट द ओल्ड मैन वॉज नॉट मूव्ड बाय द ह्यूमर दैट ही हैड एवरीवन वाइपिंग देयर टीयर्स और होल्डिंग देयर साइड्स फ्रॉम द एज ब्रोट ऑन बाय अप्रोरियस लाफ्टर, तो सबके सब क्या होते हैं, बहुत बुरी तरह से हंसते हैं, हंसते हंसते सबकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, और वो सब क्या करते हैं कि इतनी बुरी तरह जोर जोर से हंसते हैं। लेकिन वो क्या देखता है कि जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो तो जरा सा भी मूव नहीं कर रहे थे, ना उन्हें कोई हंसी आ रही थी। दिस इज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर एवरीवन, ये सबके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। ही सेड इवन द केक इज इन टायर्स,
और सब केक कटिंग के लिए सब एक केक की इंटायर सब खड़े हो जाते हैं। द चिल्ड्रन रोल्ड ऑन द फ्लोर लाफिंग, और बच्चे भी उसकी बात सुन के हंसते हंसते जो है ना फ्लोर पे वो क्या हो जाते हैं, रोल्ड हो जाते हैं। अशोक वेंट ऑन टिल ही वॉज होर्स एंड फ्यूरियसली फनी बट ही नेवर मूव्ड द ओल्ड मैन। अशोक क्या देखता है कि हर कोई उसकी बात से हंस रहा है, बट जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो उसकी बात से जरा सा मूव भी नहीं हो रहे हैं। नेवर ए गोस्ट ऑफ स्माइल, यानी उनके फेस पे हल्की सी स्माइल भी तक भी नहीं आती। एंड नेवर ए सस्पिशन ऑफ मॉइस्चर इन द आईज, और ना ही उनकी आंखों में जरा सा भी मॉइस्चर मतलब कि किसी तरह की कोई फीलिंग्स ही नहीं आती। ही वॉज एस्टाउंडेड। फॉर्चुनेटली फॉर अशोक डिनर वॉज अनाउंस्ड। तो बच्चों एस्टाउंड मीन्स होता है फिल्ड विद वंडर, अमेज्ड। ये सुन के, ये देख के अशोक भट्ट को बहुत ही सरप्राइज होता है, वंडर होता है, बहुत अचंभा होता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं उनके, कि उसका मेन मोटिव था उनको हंसाना और सब हंस रहे हैं और केवल ग्रैंडफादर ही नहीं हंस रहे थे। लेटर दैट इवनिंग रविकांत ऑफर टू ड्राइव द गेस्ट एंटरटेनर होम। तो फिर उसमें बाद में जो रविकांत होता है, उस फैमिली का जो सन होता है, उसे कहा जाता है कि जो गेस्ट एंटरटेनर है वो उनको घर छोड़ दे। ही कमेंटेड अबाउट द साइड स्प्लिटरिंग songs and jokes he shared and the extra effort he put into entertain the family। तो वो शेयर करता है उससे कि मैंने सबको बहुत ही हंसाया, सारे अपने एफर्ट्स डाल दिए जितने में डाल सकता था। All in a day's work said अशोक humbly accepting the praise। तो पूरे दिन से जो अशोक भट्ट होता है उन्हें बहुत ज्यादा प्रेज मिलती है, वो हम्बली उसको एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन वो बताता है बट आई हैड गुड रीजन। द एडोरेबल ट्विंस आस्क मी टू ट्राई एंड मेक ग्रेट ग्रैंडफादर लाफ बट, कि वो बोलता है कि मुझे खुशी तो हो रही है लेकिन उन बच्चों ने मुझसे कहा था कि वो अपने मेरे ग्रैंडफादर को मुझे उनके हंसाना था, लेकिन वो क्या हुआ, रविकांत स्लैम्ड द ब्रेक्स एंड पुल्ड ओवर द साइड गाफिंग। तो जो रविकांत होता है वो ना अचानक से ये बात सुन के गाड़ी के ब्रेक लगाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वाई डू यू लाफ। तो अशोक भट्ट उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम क्यों हंस रहे हो। इज ही ब्लाइंड एंड डीफ, क्या जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है वो ब्लाइंड है या फिर डीफ है। अशोक आस्क्ड एपोलोजेटिकली। तो एपोलोजेटिकली मीन्स होता है बच्चों मतलब वो माफी भरे शब्दों से ये बात पूछता है। यस आई मीन नो, वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। दैट वॉज ए वैक्स मॉडल ऑफ ग्रैंडपा। इट इज द ट्विस्ट ऑफ दिस चैप्टर चिल्ड्रन। वो बोलता है कि वो मेरे ग्रैंडपा नहीं है, वो तो उनका एक वैक्स का मॉडल है। वी गोट इट मेड फॉर द फैमिली फोटोग्राफ, और हमने वो केवल एक फैमिली फोटोग्राफ के लिए ही बनवाया था, यानी वो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं थे, वो उनका क्या था, वैक्स का एक मॉडल था। अशोक वॉज स्पीचलेस। अशोक जो होता है वो ये बात सुन के स्पीचलेस हो जाता है। दैट वॉट अ फर्स्ट टाइम फॉर हिम। वो बोलता है कि मेरे लिए ऐसा पहली बार हुआ है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड। Thank you once again.